Hi everyone, a very warm welcome to this particular session with your own Rakhi ma'am, the chemistry educator in front of you. Well, in today's session, as promised by me, that I'll be actually taking the session for rules for filling electrons in orbitals. I did the one shot for atomic structure, if you all remember, and I promised that I'll be recording the two left topics for you guys. The one is in front of you, rules for filling electrons in orbitals, and the second one, I'll be actually dealing with that particular topic very soon in the upcoming videos basically. That is regarding the probability density curves, the radial curves which we want to talk about. So need not to worry, I'll be actually making sure to actually give you that particular video. Okay? So over here we are going to deal with the rules for filling electrons in the orbitals. Let's begin this particular session now. Okay, moving ahead, we actually talked about regarding the quantum numbers. We actually discussed the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Now it's the turn to know the filling of orbital in an orbital. The filling of orbital in an atom. Okay, so we are actually going to deal with filling of orbitals, in an atom, in an atom. ठीक है? Okay. Filling of orbitals in an atom with electrons basically. So it is based on Aufbau's principle. It is based on Aufbau's principle. Aufbau's principle. Remember this particular thing. Herein we'll also be dealing with three more terms, and those three more terms are Pauli's exclusion principle. In accordance with Aufbau's principle, we'll be also dealing with Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Okay, fine. We'll also be dealing with Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Remember this too. And also we'll be dealing with relative energy of orbitals. So सबसे पहले, if I just talk for Aufbau's principle, सबसे पहले let's actually deal with Aufbau's principle. Aufbau's principle. ठीक है? हाँ जी. So what this particular principle says basically, ये जो Aufbau है, it's a German word which means to build up. So according to Aufbau's principle, electrons जो हैं, electrons are filled where? Electrons are filled in orbitals. Electrons are filled in orbitals in increasing order. In increasing order of energy. Acha, हाँ, we actually heard the same thing. Yes. So electrons are actually filled in orbitals in increasing order of energy. ठीक है? आपको ये तो पता होगा ना कि it's the shell, then comes the subshell, and then comes the orbital. एंड इन ऑर्बिटल्स में ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं. शेल मतलब NLMN, these are the shell. Subshell means, if I just talk about the subshell, so S subshell, P subshell, D subshell, F subshell. Orbitals means, if I talk about 2p orbital, na? If I just talk about in the P subshell, I'm talking about 2p orbitals. Okay, 2px, 2py, 2pz, such type of a things I'm going to talk about. ठीक है? Clear है ये वाली बात? Yes. ये आपको क्लियर होना चाहिए. Now, the first electron are filled in lower energy orbitals, and then electrons are filled in the higher energy orbitals. Okay, first electrons are filled in, first the electrons are started to fill in lower energy orbitals, and then electrons are filled in the higher energy orbitals.
छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी बेसिकली. क्लियर है? जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज 1s, ओके, देन इट कम्स 2s and it is 2p, then comes 3s, okay, 3p, fine, and this is 3d, then comes 4s, 4p, 4d and 4f. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Then if I write over here 5s, 5p, 5d and this is 5f, okay. Then talking about 6s, 6p, 6d, okay, and then I'm talking about what 7p. यहाँ लिख देती हूँ. तो हम किस तरह से हम डील कर रहे हैं देखो. लेट मी यूज अनदर पेन. सो पहले 1s आप यहाँ से देखो, then it will be 2s, okay, then it will be 2p, 3s. I think you getting my point over here or not? चलिए let's actually use this particular thing ताकि और easily clear हो जाए यहाँ पर, और easily clear हो जाए. So it is basically now 3p, 4s, okay, then it will be 3d, 4p and 5s, 3d, 4p and 5s, ऐसे आएगा. Yes ma'am. Then it will be 4d, 5p and 6s, 4d, 5p and 6s. Yes ma'am. Okay, then it will be 4f, 5d and 6p. Okay, then what we are left with 5f, 6d and 7p. मैं arrows भी बना देती हूँ यहाँ पर. Let me actually go with the arrows thing. So आप यहाँ पर ये देखिए एक बार. इससे क्या पता चला है? How we are going to write it up? So it's 1s, then it comes 2s, 2s के बाद में then it comes 2p, 3s, 2p, 3s, 3s के बाद में देखो यहाँ से 3s के बाद में क्या है ये 3p, then 4s, 4s के बाद में क्या है 4s के बाद में है 3d, 4p, 5s, 5s के बाद में क्या है 4d, 5p, 6s, 6x के बाद में क्या है यहाँ पर 4f, 5d, 6p, 6p के बाद में यहाँ पर क्या है फिर 5f, 6d, 7p. ऐसे चलेगा ये. ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इन कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर फिल इन करेंगे. ओके, यू माइट हैव हर्ड अबाउट n+l रूल. नहीं सुना तो अभी हम आपको बता देंगे. n+l रूल है. ठीक है, जैसे अगर n है, n इज इक्वल्स टू जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है. सो अगर n इक्वल्स टू 1 है सो इट इज k, देन इट इज l, देन इट इज m एंड n एंड सो ऑन. अगर मैं बात करती हूँ l की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, सो इट विल बी देन s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल एंड दिस इज f सबशेल. ठीक है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि n+l की वैल्यू अगर हमारी कम है तो इसका मतलब एनर्जी भी कम है. अगर n+l की वैल्यू हमारी क्या है सेम है, ठीक है, तो n अगर डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी फिर डिक्रीज करेगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? n+l की वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी भी कम होगी उसकी. अगर n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो हम देखेंगे फिर n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, अगर वो कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है. जैसे अगर मैं बात करती हूँ 2p के बारे में, 2p में n+l क्या होगा, इट इज बेसिकली 2 + 1 = 3. और मैं अगर इसको कंपेयर करती हूँ 3s से, सो इट इज बेसिकली 3 + 0 = 3. सो यहाँ n+l की वैल्यू, ये हमारी n+l की वैल्यू है, n+l की वैल्यू सेम आ गई है. तो अब किसकी एनर्जी से हम देखेंगे कि भाई किसकी एनर्जी कम है. विल इट बी 2p और 3s? हम कहेंगे 2p की एनर्जी कम है. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर कम है तो इसकी एनर्जी भी कम है. समझ में आ गई n+l रूल क्या कह रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स actually move ahead and talk about the Pauli's exclusion principle. ये Pauli's exclusion principle क्या कहता है अभी सुन लेते हैं. ये भी एक kind of a rule है in order to fill the electrons in the corresponding orbital. Pauli's exclusion principle के बारे में बात करते हैं. Pauli's exclusion principle के बारे में अब हम चर्चा करते हैं.
ठीक है, let's actually talk about the same. Now it states that no two electrons have same quantum number. It states that no two electron have same, no two electron can have same quantum number. Remember this particular thing. ठीक है, बात को समझिएगा जो मैं बोल रही हूं. Or you can say two electrons can be filled in orbitals. दो electrons can be filled in the orbitals, but they should have opposite spins. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, that means it says that no two electrons in an orbital can have same set of quantum numbers like n, l, m, n. L, it's basically n, l, m and s basically. 4 quantum numbers है ना. So अगर हम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, उन दोनों के क्या होने चाहिए? डिफरेंट quantum numbers, different होने चाहिए. It states that no two electron in an orbital can have same set of 4 quantum number. Or you can say कि two electrons can be filled in the orbitals, but they must have opposite spin. तो एक क्वांटम नंबर डिफर हो गया ना उनका. यस. अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल कितने होने चाहिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल कितने होने चाहिए? इट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ओके, दैट्स एब्सोल्यूट राइट. ओके, नाउ let's talk about Hund's rules of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. चलिए इसके बारे में भी हम डील अप कर लेते हैं. ठीक है, फाइन, ओके. इनके एग्जाम्पल्स दूंगी, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. नाउ क्या कहता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, of same subshell does not take place until each orbital of that particular subshell is singly occupied or is half filled. दोबारा से सुनो. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उस पर्टिकुलर सबशेल के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग चालू होगी. सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स of same subshell, pairing of electrons in orbital of same subshell does not take place until each orbital of that subshell is singly occupied or is half filled. Remember this particular thing. ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है, तो अगर मैं पेयरिंग के बारे में बात करती हूँ, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पेयरिंग, भाई पेयरिंग कैसे हो रही है, कब होगी? देखो, अगर मैं एस सबशेल के बारे में बात कर रही हूँ तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड अप हो जाएगा. अगर मैं पी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रही हूँ तो पी ऑर्बिटल में पेयरिंग कब चालू होगी? फ्रॉम द 4th इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर डी ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पेयरिंग चालू होगी फ्रॉम द 6th इलेक्ट्रॉन. और अगर एफ ऑर्बिटल के बारे में बात करती हूँ, या फिर देखो एस सबशेल है ये, दीज आर दी सबशेल्स, तो एस सबशेल में पेयरिंग कब चालू होगी? सेकेंड इलेक्ट्रॉन में. पी सबशेल में पेयरिंग कब चालू होगी? 4th इलेक्ट्रॉन पे. पहले px, py एंड pz इन ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, सिंगली ऑक्यूपाइड कर दिया, फिर 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू होगी. ऐसे ही डी सबशेल में 6th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू होगी. एफ सबशेल में 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू होगी. ठीक है, ओके. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ एक्सचेंज
नंबर ऑफ एक्सचेंज जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर इंक्रीज कर रहे हैं, सो एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर ज्यादा है, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर। हेंस मैं कहूंगी एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी घट गई, हेंस स्टेबिलिटी क्या होगी उस केस के अंदर, इंक्रीज हो जाएगी। हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज इन दैट पर्टिकुलर केस। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, हम कहते हैं ना कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल है, क्यों? पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ और फुल्ली फिल्ड, हाफ और फुल्ली फिल्ड सबशेल, ये क्यों होते हैं स्टेबल? द रीजन इज नंबर वन, आई विल से ड्यू टू सिमेट्री। पहला रीजन ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं हाफ फील्ड के बारे में बात करती हूँ, सो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं फुल्ली फिल्ड के बारे में बात करूँ, आप यहाँ पर देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फुल्ली फिल्ड, सो इट्स 1 2 3 4 एंड 5 6, तो ये सिमेट्री है। These two are what? These two are symmetric. These two are symmetric. That is what I want to say. ठीक है? Now the second reason is due to exchange energy. Due to exchange energy. Due to exchange energy. Exchange energy की वजह से भी। कैसे मैम? जैसे अगर मैं d ऑर्बिटल ले रही हूँ, d सबशेल ले रही हूँ, so d सबशेल में we are having 5 orbitals. Yes, 1 2 3 4 5. अगर ये हाफ फिल्ड है, अगर ये हाफ फिल्ड है, तो क्या? तो आप देखिए यहां मैं क्या बोलने वाली हूं आपको, कितने एक्सचेंजेस होंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन के। ये यहां जाएगा एक्सचेंज पे, ये यहां भी जा सकते हैं एक्सचेंज पे, ये यहां भी जा सकता है और ये यहां पर भी जा सकता है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसने कितने एक्सचेंज किए? 4 एक्सचेंज किए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां लिखूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज किए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने एक्सचेंज किए 4 एक्सचेंजेस, 4 exchanges। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज किए? आप देखो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने 1 2 एंड 3, 3 एक्सचेंज किए, 3 exchanges been made by second इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, सो इसने कितने एक्सचेंज किए? 2 exchanges किए कर दिए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने कितने? फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंजेस किए? 1 एक्सचेंज किया। और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ने कितना एक्सचेंज किया? 0 किया। इन टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए? 10 एक्सचेंजेस हो गए हैं। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 10 हो गए हैं। अगर यही बात मैं फुल्ली फिल्ड के लिए लेती, यहाँ फुल्ली फिल्ड डी सबशेल देखा जाए तो फुल्ली फिल्ड डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन 10 एक्सचेंजेस कर सकते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन 20 एक्सचेंजेस करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी, फुल्ली फिल्ड का जो स्टेबिलिटी है इज मोर देन हाफ फिल्ड, इज मोर देन हाफ फिल्ड। ठीक है, आई होप यू गॉट माई दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि हमें ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, सो दीज वर द रूल्स इन ऑर्डर टू फिल, दीज वर द रूल्स इन ऑर्डर टू फिल व्हाट? द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इन ऑर्डर टू फिल द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इसी बात पे क्या मैं आप लोगों को, इसी बात पे क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं? Shall I give you one question? इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो एक बार क्लियर हो जाएंगे और एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो लेट मी एक्चुअली गिव यू वन क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। आई होप दैट यू विल बी एक्चुअली एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट अ क्वेश्चन नाउ। एक क्वेश्चन है आपके सामने एंड देन विल बी कंक्लूडिंग द सेशन। फॉर n plus l equals to 5, find maximum number of, number 1 subshell, maximum number of subshell, number 2 orbitals कितने होंगे, and number 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सबशेल कितने, ऑर्बिटल्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास n प्लस एल इक्वल्स टू 5 गिवन है, यस और नो? हाँ जी। तो अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का एक कॉलम बनाऊं और इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉलम बनाती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरा n 5 है
और L की वैल्यू 0 है. सो इट इज 5s बेसिकली. कितना ऑर्बिटल हुआ 5s सबशेल में? 5s ऑर्बिटल है ना, तो 5s ऑर्बिटल 5s सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5s सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? एक. s में एक ही होगा ना. यस. अगर मैं कहूं n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, सो इट बिकम्स 4p ऑर्बिटल, या फिर आप कहिए 4p सबशेल है ये हमारा. तो इस 4p सबशेल में ये 4p क्या है? सबशेल है. इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4px, 4py, 4pz ऑर्बिटल्स हैं. कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4px, 4py एंड 4pz. ठीक है. सो ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 3 हो गए हैं. तो अगर मैं कहूं एक ऑर्बिटल है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे? 2 होंगे. 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होंगे? 6 होंगे. ऐसे ही अगर मैं कहती हूं कि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, सो इट बिकम्स 3d सबशेल. अब 3d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं. और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टेल मी. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अच्छा. और अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 3 है, सो आपने कभी देखा है 2f? ये 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना. तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इन टोटल हमारे कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 9 ऑर्बिटल्स हो गए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. सो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑर्बिटल्स 9 हो गए. सबशेल कितनी हो गई हैं? बताइए कितनी सबशेल्स हैं? हाउ मेनी सबशेल्स डू वी हैव ओवर हियर? S सबशेल, P सबशेल, 5s सबशेल, 4p सबशेल एंड 3d सबशेल. ये सबशेल्स हैं बच्चा. दीज आर सबशेल्स. सो 3 सबशेल्स हो गए हैं. So this was actually the thing which I really want to deliver over here for you people. आपको समझाना मेरा मेजर काम था, वो मैं समझा चुकी हूँ. अब a very big announcement over here that we are actually launching the Drona batch, okay, on the YouTube channel of Imbibe J, ठीक है, as well as on the app also. Imbibe app पे भी ये batch launch हो रहा है. So these are the timings. I mean to say this is the timetable on YouTube for the educators and the classes corresponding to them. It's me, Rakhi Jaju, your chemistry educator, Girish Chandra sir, the physics educator, and yes, let me actually talk about the mathematics faculty. He is Sheikh Rafiq sir and he is going to take your maths class. So this is the schedule for YouTube channel of Imbibe J basically. Well, let's move ahead and let's talk about कि भाई अब हमारे मैम ऐप पे क्लासेस होंगी. yes, ऐप पे also we all are with you people. ठीक है. सो ऐप के टाइमिंग्स ये हैं. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस इज द द्रोना बैच फॉर J 2024 एंड वी all 3 teachers will make sure कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं and we take to your dream to crack JEE Mains 2024. All the very best. Bye-bye and take care. Keep imbibing. We believe in you.